So, hello children, this is Suresh Kumar Devangan, your teacher, your mentor, your friend. I'm once again here with a new lesson of Flamingo today. As you know, we are running a series of MCQs for Term 1 for the examination 2021-22. Since it is a poem, we will be looking. Today I have brought the poem as well for you so that you can at least read the poem and we can go with the explanation also. As in the previous series you have been watching it, that the questions are also asked from the poet side, about the poet, about the author. So that also we will be looking today. So today, keeping quiet without wasting time, we'll begin with Pablo Neruda. But this Pablo Neruda is not the actual name of the poet. Remember, Pablo Neruda is not the actual name of the poet. The original name is Neftali Ricardo Reyes Busalto. डिफिकल्ट, कठिन है नाम, लेकिन याद रखेंगे नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बुसाल्टो, and he was born in the town of Parel in Chile. This word is to be pronounced as Chile. चिली एक साउथ अमेरिका में एक कंट्री है. स्पेनिश इसका प्रोनाउंसिएशन जो चिले, इसका स्पेनिश प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? चिले, याद रखेंगे. लेकिन of course we follow British English and sometimes American English. So in both British and America it is to be pronounced as Chile. So this you will remember for sure. So this Pablo Neruda is a pen name. ये प्रश्न पूछा जाता है, who writes under the pen name of Pablo Neruda? तो Pablo Neruda तो हमें याद रहता है, लेकिन हम उसका ओरिजिनल नाम भूल जाते हैं. तो याद रखेंगे नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बुसाल्टो, who was born in the year 1904 and died in the year 1973. He was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. अब ये उसकी पूरी थीम हो गई. जनरली वो किस थीम पर लिखता है? नेरुडा जनरली किस थीम पर लिखता है? तो ही राइट्स ऑन द थीम ऑफ फुल ऑफ easily understood images which make them no less beautiful. अब वो उतना ही सुंदर होता है. It is not less beautiful. सबसे बड़ी बात पेब्लो नेरुडा के बारे में, he won Nobel Prize for Literature, my dear children, in the year 1971, just before 2 years of his death. इस बात से हमको ये पता चलता है कि he wrote till the end of his life. 2 साल पहले उसे नोबेल प्राइज मिला, before his death. इस बात को याद रखेंगे. नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर, इट मीन्स द हाईएस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता दूं. द ओनली इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज रविंद्रनाथ टैगोर, who got it in the year 1913 for his work Gitanjali. In 1913, Rabindranath Tagore got Nobel Prize for Literature, the only Indian to receive Nobel Prize for Literature from India. So this is all about Pablo Neruda. In his poem, in this poem particularly, हाँ, इस poem की theme क्या होने वाली है हम ये देख लेते हैं. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection. हमें सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है, हमें अपना मूल्यांकन करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है. हमें 2 मिनट चुप रह के, मौन रह के. He requests us to be silent for some time, and his silence should not be misunderstood with inactivity. वो हमें ये कभी नहीं कहता कि इनएक्टिव रहो, वो कहता है साइलेंट रहो और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करो. So in this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection in creating a feeling of mutual understanding. आप मुझे समझो और मैं आपको समझता हूँ. आप मुझे समझते हैं इसलिए मेरे बातों से सहमत होते हैं. आप अपने इस चैनल पे आते हैं और पोएम की अंडरस्टैंडिंग करते हैं. लाइकवाइज देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग. तो लेट्स नाउ गेट बैक टू द पोएम. अब हम पोएम की ओर चलते हैं
और पोयम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं। बच्चों मैं एक बार फिर से आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि ये 40 एमसीक्यूज आपने कर लिए, चैप्टर इज ओवर, इट इज ऑल फिनिश्ड। उसके बाद फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। So let's get back to the poem. We will go ahead directly with the poem now. So here we go. This is the original poem that I have written for you. आप इसे पढ़िए एक बार. I will give you 1 minute time to read the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. We will count up to 12 and we will remain silent. We will keep still. अब एक प्रश्न आता है, उसने 12 ही क्यों बोला, 11 क्यों नहीं बोला, 13 क्यों नहीं बोला, 24 क्यों नहीं बोला, 100 क्यों नहीं बोला, 50 क्यों नहीं बोला? There is a reason behind it. 12, आपकी घड़ी की सुई में 12 ही बजते हैं, मतलब एक दिन में 12 घंटे होते हैं. There are 12 months in a year. एक साल में 12 महीने होते. There are 12 zodiac sign, जो आपके राशि फल होते हैं, उसमें 12 राशि होते हैं. All symbolizes 12. It means 24 into 7. So now we will count to 12 and we will keep still. बच्चों जब पोएम के एनालिसिस में आप जाते हैं, हालांकि मैं पूरा पोएम आपको एनालिसिस करके नहीं दे रहा हूँ, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोएम, और बीच बीच में एमसीक्यूज की मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, लेकिन आपको कितनी बारीक नज़र रखनी है ये मुझे ध्यान से देखेंगे. और यदि आपको ऐसा लगता है कि सर आप पोएम भी पूरा एक्सप्लेन कीजिए, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएंगे. What do you want? Should I go for the explanation? If I go for the explanation, वीडियो बहुत लंबा बनेगा, और मैं सोचता हूँ कि आपकी आवश्यकता अभी केवल एमसीक्यू तक है, इसीलिए मैं एमसीक्यू पे फोकस कर रहा हूँ. फिर भी मैं देखो आपको चीजें बताता हूँ किस तरीके से आपको ध्यान देना है. नाउ वी विल काउंट टू 12. पहली लाइन से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए आप. दिस वी विल, दिस द लेटर W, the letter W. Now what is the figure of speech here? It is alliteration, because repetition of letter W is there again. And we will all keep still. This W and W again repeat, alliteration is there. Likewise children, आपको एक एक figure of speech पे भी ध्यान देना. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arm so much. इसी तरीके से children, you will read the whole poem. I am not explaining the poem right now. Rather, I will go for the question answer. That is the much needed activity of the art. So let us go directly to the questions. I hope you would be in a position to answer the questions. So what does the title of the poem suggest? ये जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट, ये हमें क्या बताता है, क्या सजेस्ट करता है? इनएक्टिविटी नहीं, अभी मैंने बोला पोएट इनएक्टिविटी की बात नहीं करता. नॉइज नो, अनहैप्पीनेस नो. द आंसर इज मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस. इट टीचेस अस अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस. Let us move to question number 2. What does the poem speak about? यह पोयम किसकी बात करता है? The poem speaks of the necessity to introspect. हमें अपना इंट्रोस्पेक्ट, सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है. We need to understand and have feeling of brotherhood. सीधा आंसर पे फोकस कीजिए. Hit the nail directly. Hit the nail directly. So what does the poem speak about? Poem किसकी बात करता है? The poem speaks of the necessity to introspect, understand and have feeling of brotherhood. What does counting up to 12 signify and how will it help? 12 ही क्यों बोला है? What does it signify? It signifies hours of the day. Yes, अभी बताया था मैंने. Months of a year. Yes. It will help to create peace and harmony. Yes. So the answer is all of these. एग्री? आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज पोएट्स पेन नेम? बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आंसर बताऊं क्या? नेरुडा, पेबल, पेब्लो. द आंसर इज पेब्लो नेरुडा. अब मैं प्रश्न पूछता हूं, पेब्लो नेरुडा का एक्चुअल नेम क्या है? अब कुछ बच्चे फिर से वीडियो को रिवर्स करेंगे, और आपको करना भी चाहिए. वीडियो को रिवर्स कीजिए, पीछे जाइए, देखिए मैंने क्या बताया था.
इट इज अ होमवर्क टू यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट डज द स्टाइल ऑफ द पोएम सिंबलाइज दैट द पोएट यूज्ड टू राइट विथ? कौन सी स्टाइल ऑफ पोएम पे, व्हाट डज द स्टाइल ऑफ द पोएम सिंबलाइज, जो पोएट की स्टाइल है लिखने की, वो क्या सिंबलाइज करता है? What does it symbolize? That is the question. And here are the option. And it symbolizes desire and hope. कि हमारी क्या आशाएं हैं, हमारी क्या desire. Now the question is, what is the original language of the poem? Poem की original language क्या है? Yes, my dear, it is written in Spanish. अब याद कीजिए कि मैंने आपको pronunciation किया था द बर्थ प्लेस, क्या बताया था मैंने? चिली। और उसका स्पेनिश प्रोनाउंसिएशन भी बताया था। क्यों बताया था भाई? बिकॉज ही वॉज बोर्न इन स्पेन, स्पेनिश लैंग्वेज इज स्पोकन देयर एंड पेब्लो नेरुडा इज राइटर ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज। बेटा मैं कुछ भी बताता हूँ, देयर इज अ सेंस बिहाइंड। एक एक बात को मेरी बहुत ध्यान से सुनेंगे, और जब भी यूट्यूब में ये वीडियो देखने बैठेंगे, एक डायरी और पेन, बल्कि आपकी क्लास वर्क की कॉपी एक लेके आप बैठें, बहुत अच्छा होगा, ताकि चीज़ों को आप नोट कर सकें। नाउ व्हाट इज द एसेंस और द मैसेज ऑफ द पोएम? इस पोएम का मैसेज क्या है? दैट इज अवर question, and it gives us the message of introspection and retrospection to be more peaceful and be in harmony. हम जो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, it should to be more peaceful and be in harmony. Question number 8, what does the poet feel is needed to be at peace? किस चीज को पीस में होना चाहिए? What does the poet feel is needed to be at peace? Options are here and the correct answer is soul searching. हमें अपने आप को पहचानना है। We have to identify ourselves, what we are for, who are we, that is to be taken care. Question number 9, according to the poet, what creates barriers? What creates barrier? And the very simple answer for this is language creates barrier. Let's not speak in any language. Poet ने एक लाइन यूज की थी, let's not speak in any language. So language creates barriers. What does the poet ask people not to? Why does the poet ask people not to speak? क्यों कहता है कि थोड़ी देर चुप रहो? Let's be silent for some time. Why does the poet say so? Poet says so because it creates barriers or obstacles in the form of misunderstanding amongst people. It creates barrier or obstacle in the form of misunderstanding amongst the people. Now dear children, let us move on to the question number 11, and the question is, what is the rhyme scheme used in the poem? You need to observe the poem completely, only then you would be in a position to find out rhyme scheme. So here are some terms: enclosed rhyme, monorhyme, sonnet और free verse. चारों को आपको समझने की जरूरत है कि सोनेट क्या होता है। सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइंस विथ एन ऑक्टेव और सेस्टेट। 8 लाइन की स्टेंज अलग होती है, ऑक्टेव 6 लाइन की स्टेंज अलग होती है, सेस्टेट। फ्री वर्स माय मदर एट 66 आपने पढ़ा है। मोनोराइम एक ही राइम को लेके लिखा गया है। इनक्लोज्ड राइम, दैट पर्टिकुलर राइम इज बीइंग रिपीटेड। यहाँ पे इस पोएम में क्या है, तो इट इज रिटन इन फ्री वर्स लाइक माय मदर एट 66। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ एंड कैन चेंज एटीट्यूड? हाउ कीपिंग क्वाइट विल चेंज योर एटीट्यूड? कीपिंग क्वाइट आपके एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकता है? ऑप्शंस आर, इट हेल्प्स टू थिंक एंड सर्च सोल। सेकेंड इज हेल्प्स टू स्क्रैच वन सोल। helps to develop new thinking process. तीनों आंसर करेक्ट है। देखो, it helps to think and search your soul, helps to scratch one soul, help to develop new thinking process, नए thinking process को develop करने में मदद करता है, कि all of these? तो आंसर हो जाएगा आपका all of these. क्वेश्चन नंबर 13, how will keeping quiet protect our environment? भाई इससे environment कैसे सेफ? हम चुप रहते हैं तो environment कैसे सेफ रहता है? The answer is no noise will be there.
नो नॉइज विल बी देयर। और दूसरा ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनको आप कंसिडर कीजिए। बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग पीपल विल नॉट फाइट। नन, नन तो आंसर नहीं है। पीपल विल नॉट फाइट, ठीक है, बट इन्वायरमेंट का उससे कोई फर्क नहीं है। फिर नो नॉइज विल बी देयर, नॉइज से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग। हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित होगा? इफ वी हैव फीलिंग ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड, डेफिनेटली we will lead a very good life. So A is the answer. कई बार बीच बीच में मैं इसलिए आपके लिए छोड़ देता हूँ, अगर मैं गलत उत्तर बताता हूँ आप मुझे करेक्ट कीजिए। Well, at the end I'll be telling you the right answer. You need not to be worried about, and the answers given here are quite authentic. So you need not think about second opinion. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट को क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है? अनथॉटफुल एक्शन बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि लोग आजकल सोचते ही नहीं है, सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, बिना बोले भी हम कुछ भी, बिना सोचे हम कुछ भी बोल देते हैं। वायलेंट एक्शन, ये सब तो बर्बाद कर ही रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट? ऑल दीज थ्री थिंग्स आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट? नंबर 12 मैंने पहला ही प्रश्न पूछा था, व्हाई टू काउंट अप टू 12, व्हाई नॉट 13, व्हाई नॉट 11, व्हाई नॉट 10, व्हाई नॉट 50? इसका आंसर क्या है देखिए जरा। आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ्स ऑफ ईयर, करेक्ट है क्या? अर्थ, क्लॉक या क्रिकेट प्लेयर्स? सोचना पड़ रहा है क्या? अगर सोचना पड़ रहा है तो ये सोचने की बात है कि आपको क्यों सोचना पड़ रहा है। द राइट आंसर इज आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर। क्लॉक तो इसमें आ ही गया, इसलिए आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 वी विल मूव टुवर्ड्स। व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीच अस? ये जो पोएम है वो हमें क्या पढ़ाती है? हाउ टू मेंटेन साइलेंस, क्वेश्चन नंबर 16 है माय डियर चिल्ड्रन। हाउ टू मेंटेन साइलेंस सिखाती है, नॉट टू मेक नॉइज सिखाती है, स्पीकिंग क्रिएट्स नॉइज, नहीं ये नहीं सिखाती, to be peaceful, thoughtful, have feeling of brotherhood. Yes, this is the answer. To be peaceful, to be thoughtful, and to have feeling of brotherhood. क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। Not move our arms. What does this expression refer to? पोएट जो कहते हैं not move our arms, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? सिट क्वाइटली कि चुपचाप बैठ जाओ, स्टैंड क्वाइटली कि चुपचाप खड़े हो जाओ, टू बी इनएक्टिव कि बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, कि सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट? क्या आंसर होगा जरा सोचिए। एंड द आंसर इज डी, सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट। वो चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप खड़े हो जाओ, सोचो मत, ऐसा नहीं कह रहा है। Inactivity is not at all the purpose. Question number 18. Why is silence treated as big issue? Silence यदि आप रखते हैं तो why it is a big issue? It is a big issue because it helps to search our soul, correct? It helps us to analyze our action, correct? Help us to be thoughtful and find our true self, absolutely correct. The answer is all of these. ये आंसर हो जाएगा आपका। बच्चों मुझे उम्मीद है तुमको, आपको मजा आ रहा होगा, आप पढ़ रहे होंगे। खैर पढ़ना है, समझना है, मजा आने वाली बात नहीं है। वीडियो पे कॉन्स्टेंटली बने रहिए, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। ऐसा नहीं है भाई कि आपने 15 मिनट अभी देख लिया, 10 मिनट बाद में देखेंगे, 15 मिनट फिर करेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो एक चपाती हमने अभी खाई, फिर 15-20 मिनट बाद, ये परसों नरसों हम दाल खाई हमने, फिर उसके 2 दिन बाद हमने सब्जी खाई, ऐसा करते हैं क्या? आप जब फ्री फायर का गेम खेलते हैं कुछ भी नहीं सूझता, मम्मी पापा किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, जस्ट यू कीप ऑन प्लेइंग, यू कीप ऑन प्लेइंग। माय डियर, डायर कंसंट्रेशन इज देयर, दैट डायर कंसंट्रेशन इज नीडेड व्हाइल स्टडीइंग हियर एज वेल। जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसी डायर कंसंट्रेशन की जरूरत है। 30 मिनट्स विद देवांगन सर यू नीड टू गिव, एंड देन nobody will check you to be A1 in English, I promise you, I guarantee you. क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मुड़ते हैं। what should be what should not be confused with total inactivity or death?
What should not be confused with total inactivity or death? And the right answer is stillness and silence. Stillness and silence does not mean inactivity. It not at all means that you should be completely inactive. क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए. What should not be confused with total inactivity? And the right answer is, what is the right answer? Stillness and silence. Question number 20. What can be a cure or an uh, antidote to violent action? अभी हम कोरोना का एंटीडोट खोज रहे थे. एंटीडोट मीन्स दैट ट्रीट्स इट. So what can be a cure or an antidote to violent action? वायलेंट एक्शन का तोड़ क्या हो सकता है? उसे कैसे रोका जा सकता है? किस चीज से रोका जा सकता है? By practicing silence. By the practice of silence, you can stop violent action. Sometimes you feel that you need to take action immediately, but at the same time, if you keep yourself silent, maybe that violent action can be stopped for that particular point of time. Question number 21. What is the sadness in the poem that the poet speaks about? किस sadness की बात करता है poet? पूरे poem में किस sadness की बात करता है? And the right option is violence, because of the unthoughtfulness of the people. लोग unthoughtful हो जाते हैं, इसीलिए they think for the violence. So that is to be avoided. Question number 22. What does the earth symbolize? अर्थ किस चीज को सिंबलाइज करते हैं? द अर्थ सिंबलाइजेज प्रिजर्वेंस एंड न्यू बिगनिंग फ्रॉम द सीमिंगली स्टिलनेस. यू कैन बी साइलेंट एंड यू कैन हैव अ न्यू बिगनिंग. इसके दूसरे ऑप्शन देख लीजिए आप. स्टिलनेस, ग्रीनरी, प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों चीजें तो आती हैं, बट द बेस्ट आंसर इज प्रिजर्वेंस. इन सबको बनाए रखना. एंड न्यू बिगनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस. Question number 23. What is always alive even when everything seems to be dead or still? कौन सी चीज ऐसी है जो जीवित रहती है जब हमें ऐसा लगता है कि everything is dead or still? तो उस समय पे भी कौन सी चीज बरकरार रहती है, कौन सी चीज स्टिल रहती है? माउंटेन्स रहती है, रिवर्स रहती है, सन बिल्कुल रहता है. तो हम उसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव. सन, रिवर, माउंटेन, दे आर ऑल द पार्ट्स ऑफ नेचर. इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द फोर्थ वन. फोर्थ वन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर. आई होप इट इज क्लियर चिल्ड्रन. आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाई डज द पोएट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट? बहुत अच्छा प्रश्न है. ये पूरा इसमें पूरी समरी आ गई आपकी पोएम की. व्हाई डज द पोएट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट? पोएट ये क्यों कहते हैं लोगों को कि भाई शांत रहो, क्वाइट रहो? टू मेंटेन साइलेंस, टू अवॉइड नॉइज, टू बी फ्रेंडली, इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल. थोड़ा सा समझिए, कंफ्यूज हो सकते हैं आंसर से, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है. द आंसर इज इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट डज द पोएट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड? भाई 1 सेकेंड के लिए तो करो, but do it for 1 second. Just do it and then you will find. Does the poet want the people to sing, to close the eyes, to stand quietly, to be still and motionless? फिर से चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए. दो ऑप्शन तो आप बिल्कुल सिरे से नकार देंगे, दो ऑप्शन पे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे. तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? द बेस्ट ऑप्शन इज he says us to be still and motionless. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. बच्चों मैं बहुत ज्यादा समय आपको दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस पे मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं ताकि every second of your time is being utilized. How can the moments of no activity help people? जब हमारे मोमेंट होंगे जिसमें नो एक्टिविटी हो रहा है, तो हाउ इट कैन हेल्प द पीपल? आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए. मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकेंड 10 सेकेंड का पॉज लेता हूं ताकि उस समय आप फटाफट फटाफट ऑप्शन को पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल फ्लैश हो रहा है, तो उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं. एंड द राइट आंसर इज टू रिलैक्स एंड to be more thoughtful. How can the moment of no activity help people? It can help the people to relax and to be more
thoughtful. Question number 27. What will happen if there are no engines and no crowd? एक लाइन आई थी पोइट्री की, what will happen if there is no engine and there are no crowd? ऐसी स्थिति में क्या होगा? It will create a perfect happy moment. No crowd, no noise, the perfect happy moment will be created, and you will get the peace of mind, and you will be able to introspect yourself. बहुत सारी वायलेंस को, unnecessarily थॉट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. Why is the moment of silence called exotic? अच्छा प्रश्न है. मोमेंट ऑफ साइलेंट को पोएट ने एक्सोटिक क्यों कहा? एक्सोटिक का तो मीनिंग कुछ और होता है, तो क्यों पोएट ने उस मोमेंट को, मोमेंट ऑफ साइलेंस को एक्सोटिक कहा है? द राइट आंसर इज बिकॉज ऑफ द परफेक्ट पीस एंड हार्मनी. बिकॉज ऑफ द परफेक्ट पीस एंड हार्मनी. क्वेश्चन नंबर 29. What would everyone feel at that exotic moment? उस exotic moment में, कौन से exotic moment में? जब पीस होगा, जब हार्मनी होगी, तो लोग कैसा महसूस करेंगे? हैप्पी, कंटेंट, सेटिस्फाइड, कि वो डांसिंग फील करेंगे, कि स्ट्रेंज ब्लिसफुल वननेस, स्ट्रेंज बड़ा आश्चर्यजनक, ब्लिसफुल वननेस फील करेंगे. क्या फील करेंगे? दिस इज द राइट आंसर. दे विल फील द स्ट्रेंज ब्लिसफुल वननेस, कि हम सब एक हैं, वी आर ऑल यूनाइटेड, वी आर ऑल टुगेदर. देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड among all. How long is the poet expecting everyone to stay still? कितनी देर तक चुप रहने को बोलता है भाई? कितनी देर तक पोएट कहता है कि आप चुप रह के प्रैक्टिस करो? He says, stand still for 1 second or you count till 12. Till we count 12. 12 तक काउंट करने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. एक सेकेंड, हालांकि एक सेकेंड से ज्यादा समय लगता है. इट इज सिंबॉलिक, बट you keep quiet till counting up to 12. Question number 31. Why is the poet asking everyone not to speak any language? किसी भी लैंग्वेज में क्यों मत बोलो? मैंने पहले ही बताया, लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर. यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखें जरा. टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. Why is the poet asking everyone not to speak any language? Because language the poet wants us not to speak any language to avoid conflicts, ताकि हमारे बीच में कोई अंतर्द्वंद ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई झगड़े ना हो, और किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो. याद रखेंगे बच्चों. अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पोएट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन? सेकंड पैराग्राफ में आता है, फिशरमैन वुड नॉट हार्म व्हेल्स. ये बात आपने पढ़ी थी लाइन में. देखिए आपके ऑप्शन में क्या है? टू फाइंड मोर फिश, टू गो टू डीपर इनटू द सी, टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, कि नन. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बताने की जरूरत नहीं है. टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश. यहाँ पे वेल शब्द, वेल फिश की बात की गई है. While gathering salt, what will happen to the man if he keeps silent for a moment? If the man keeps silent for a moment, what will happen to him? Actually, the salt gatherer harms himself. He harms his own hands. अगर वो साइलेंट रहता है, वो चुप रहता है, तो what will happen? That is our question. And the right answer is, he will think of the harm the salt is doing to his hands. He will be able to analyze, मैं अपने ही हाथों को नुकसान पहुंचा रहा हूं. All right? He will get time to think for himself. What does hurt hands refer to? Hurt hands जो है वो किसकी बात करता है? What does it refer to? It refers to growing needs of the man. नहीं. Growing need greed of man. नहीं. Unfulfilled desire कह सकते हैं, but growing insensitivity of the man to pain. उसके हाथों में दर्द हो रहा है लेकिन उसे महसूस ही नहीं हो रहा है. He has become insensitive for himself. और पोएट चाहता है इसी चीज को इंट्रोस्पेक्ट करो, इसी चीज का एनालिसिस करो. हम क्यों दूसरों से लड़ाई लड़ रहे हैं? Why we are planning for the green war, the chemical war? Rather, we should walk hand in hand. हाथ में हाथ, गले में गले, कंधे से कंधा मिला के चले. There should be the feeling of brotherhood. Let's put on the clean clothes and walk forth. पोएट एक जगह ऐसा कहता है. How will silence benefit the man in nature? मनुष्य को तो मनुष्य को, नेचर को भी कैसे बेनिफिट करेगा साइलेंस? बहुत अच्छा प्रश्न है.
And the right answer is man will stop hurting nature and both will heal themselves. मनुष्य नेचर को, नेचर मनुष्य का ध्यान रखेगा. दैट इज व्हाट. जब नेचुरल कैलामिटी होता है तो हम कह देते हैं द नेचर इज बैलेंसिंग इटसेल्फ. वही बात हो जाएगी यहाँ पे. विच इमेज इन द पोएम शो दैट द पोएट कंडेम्स आर हेट वायलेंस. कौन सी ऐसी लाइन है जो पोएट की ये बताती है पोएम में कि ही डज नॉट लाइक द वायलेंस और ही हेट्स वायलेंस. फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स, और wars leaving behind no survivors to celebrate, poets refusal to deal with death, या all of these. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. सीधा सीधा एक आंसर. फिशर नॉट हार्मिंग वेल्स, ये भी नेचर से जुड़ा हुआ है और ये बताता है कि एक हिसाब से ही कंडेन्स वायलेंस, क्योंकि वायलेंस तो हो रहा है वेल्स से, इसलिए ये भी ऑप्शन हो सकते हैं. वार्स लिविंग बिहाइंड नो सर्वाइवल्स टू सेलिब्रेट, ऑफ कोर्स क्योंकि लोग मर रहे हैं. पोएट्स रिफ्यूजल टू डील विथ डेथ, आई वांट नो ट्रक्स विथ डेथ, ये लाइन पोएट ने यूज की. तो दिस इज आल्सो द करेक्ट आंसर. सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 37. What symbol from nature the poet uses to prove that keeping quiet is not total inactivity? वो कह रहा है कि keeping quiet होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब inactivity नहीं है. ये किस बात से ऐसा हम symbolize, what symbolization did we get? Sun, yes. Soil, yes. Earth, yes. Nature and earth. This is the correct answer because it includes all these three. Question number 38. What are the different kinds of wars mentioned in the poem? किस किस प्रकार के वार की बात इसमें मेंशन की गई है इस पोयम में? एंड द राइट आंसर इज, देखो, वार अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बोली गई है, वार अगेंस्ट नेचर बोली गई है, वार अगेंस्ट गैसेस एंड फायर बोली गई है. तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग्स लर्न फ्रॉम नेचर? हम नेचर से क्या सीख सकते हैं? ये ब्यूटी की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे. BEAU, ब्यूटी की स्पेलिंग करेक्ट. BEAUTY, ब्यूटी करेक्ट. देन कीपिंग क्वाइट, देन टू बी हैप्पी, ये वर्किंग विद साइलेंस. चूज वन द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल. द राइट आंसर इज वर्किंग विद साइलेंस. क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ. व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम नेचर? हम नेचर से क्या सीख सकते हैं? ब्यूटी तो खैर हम सीख ही सकते हैं, कीपिंग क्वाइट हम नहीं सीख सकते हैं, टू बी हैप्पी हम सीख सकते हैं, बट व्हाट बेस्ट वी कैन लर्न? वर्किंग विद साइलेंस. हम शांत भी रहें और काम करें. नदी चुपचाप बहती है, कोई शिकायत नहीं करती है. पेड़ चुपचाप हमें ऑक्सीजन देते हैं, कोई शिकायत नहीं करते. हम पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं फिर भी वो एक जगह पे खड़े रहते हैं. तो व्हाट वी कैन लर्न? नेचर वर्क्स बट इट वर्क्स साइलेंटली. Now, my dear children, we are moving to the last question of the day. It is, how does the poet perceive life? Poet का life के प्रति दृष्टिकोण क्या है? Life को how does he look the life as? As stillness? नहीं. As silence? नहीं. Noisy place? नहीं. It is a conscious elevation of nature. बल्कि तो प्रकृति का conscious evolution है, evolution है. इसे हमें बनाए रखना. So children, these are the 40 questions that I wanted to discuss with you, and I promise you, if you see all these 40 questions, you are going to create magic in your life as far as this chapter is concerned. मैं फिर से एक बार आपसे ये कहूँगा, if you have not subscribed the channel so far, you must press this icon and this like button if you like the video. Do press this bell icon so that you get all the latest notification. You can contact if you want me to help out in one or the other way, giving you some other study materials. So you can contact me on this number. This is my WhatsApp number. This is the Facebook link. You can get connected to English with Devangan sir page. This is the page for Telegram. You can join it. All the latest notifications are given there. All the latest links are given here. I hope children you have understood. I want to be connected with you. I want to know your views, and this you can do through your comment in the description box. Don't forget to give the test. Test link is also given. Printable study material is given. ये जो PDF हमने पूरा पढ़ा है
आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं करें तो आप मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, जिससे भी पढ़ रहे हैं, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। चारों ऑप्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल करेक्ट ऑप्शन लिखिए, और इन सबको आप एक सीरीज भी लिख देंगे तो इट बिकम्स अ समरी, एंड दैट विल हेल्प यू रिमेंबर everything directly. So that's all from my side, children. Thank you. Have a nice day. See you.